दिया है पहले की बात आदत में चूते This conference will now be recorded. की बात Hello. Good afternoon all. I welcome all on behalf of Shreyas E-Learning Academy in the third session of our new series Arsha. Today's topic is Arsha Nidan Panchak, and we have with us Vaidya Forum Joshi madam. She has completed her BMS from JS Ayurved College Nadiad and MS in Shalyatantra from the Institute for Postgraduate Teaching and Research in Ayurveda, Gujarat Ayurveda University, Jamnagar. She is studying PhD from the same Gujarat University, Jamnagar. Currently, she is an assistant professor in the Department of Shalyatantra, JS Ayurveda Mahavidyalaya and PD Patel Ayurveda Hospital, Nadiad. She is a clinical registrar for 2 years at Gujarat Ayurveda University. She is working as a consulting surgeon in PD Patel Ayurveda Hospital, Nadiad since November 2016. She has cured more than 12,000 OPD patients, more than 6,500 IPD patients. She has conducted more than 4,500 parasurgical procedures, and most important, she has conducted more than 3,000 surgical procedures, especially in the anorectal surgeries. She has completed one clinical prospective research work as a principal investigator on wound management under late Professor Dr. P.J. Deshpande Memorial Fellowship sponsored by Indian Society for Study in Traditional Asian Medicine. Also, she is currently working with one clinical project in JS Ayurved Mahavidyalaya, Nadiad. She has got 5 awards for her best paper presentation. So, without wasting much more time, I would like with the Forum Joshi madam to start her session. Thank you, madam. Thank you, doctor. So, as Dr. Rishikesh said, I am Vaidya Forum Joshi and I am presenting my topic today, that is Arsha Nidana Panchaka, considering the etiopathogenesis. As it is a very wide subject, it can be completed in one class, but I have tried my best to compile and put it in a one lecture. Let's go through. What are the contents of the talk today? We will see Arsha Nidana, Samprapti, Rupa, interrelationship of Arsha with another clinical pathogenesis, and in modern aspect, hemorrhoids and myths and facts in brief. Many times these chapters are being read and what we consider that we put on our clinical test. So what are the differences and what are the main clinical facts that we need to focus, first of the thing. Secondly, we are also confused in so many of the things that why Ayurveda, why not modern, and in many classes we see that people talk about modern pathogenesis also. And at the end point, when people say us that okay, whatever the types are mentioned in Ayurveda that you are talking about Vata, Pitta, Kapha, you all end up to a Kshar Sutra ligation or up to the hemorrhoidectomy or some of the medical management. But there is also one clinical question there. If all the piles are same, then why different kind of manifestations are there? Different kind of presentations are there? Okay, we will see all these things today. What are the specific learning objectives today? That is, delegates who are attending today will be taught about the Arsha Samutthana, that is not only the Samprapti, but along with that all the Nidan Panchaka composition and its clinical manifestation. Interrelationship of the Arsha with other Koshta and Shaka Ashrit Samprapti will be clarified.
See, one thing is that what we have seen in our class is that Arsha are having both of the Rogamarga, that is Abhyantar Rogamarga and Bahya Rogamarga, both are there. So, in many of the times while we are doing diagnosis in the clinical, there we see that, hello, the slides are moving or not? Okay, I think it is moving right now. So what we were talking about, Koshta and Shakha related pathologies. In our classics also in Charaka Samhita, it is mentioned that Arsha are having two ways, that is two Rog Marga. One is the Abhyantar Rog Marga and one is the Bahya Rog Marga. By clinical consultants, what we see, we compare it with the allopathy. We see it as an internal piles and external piles. While coming to a conclusion, we make that Bahya Abhyantar Arsh or Abhyantar Bahya Arsh, that both are same and both get manifestation at a Guda Marg only. No, it is not that. Abhyantar Roga Marga, which clinically interprets the Koshta related Samprapti, and Bahya Rog Marg that denotes Shakha related Samprapti. Both cannot be merged. That we clinically see in our patients and we translate it internal external piles as Bahya Abhyantar Arsh. No, they both are different things. So don't intermix the concepts. What are the different pathogenesis are there are already depending upon the clinical manifestations, and they will require the different treatment modalities also. What will be the outcomes today? That delegates will be able to identify the clinical differentiation between Vidhi Bhed of Arsha. These are the references I have taken the compiled materials. What are the specification of today's talk? See, there are two things. One is Arshansi iti adhimansa vikara, and the second one is Sarvesham cha Arshasa madhisthana medo mansa tvakacha. Now coming to the point why it is mentioned everywhere. So why we need to focus it? Because we are considering med, mans and tvaka as a dhatu. No, it is not like that. They are as a part of Shakha and Mamsadhara Kala, Medadhara Kala and Tvak as a part of Shakha itself. We see the clinical examples also, that Shonit Arsho due to Raktaja Dosha and Arbuda Arsha etc. due to Mansa Dosha. So wherever the body part is compiled, where the body mass is formed, that will come into the Shakha Ashrita. Where the body mass is not prepared, that will come into the Koshta related Samprapti. Now also we can talk here about Rakta Dosha. When Rakta Dosha will work, up to Sushruta's consideration, Sushruta says in some of the chapter it says that it is due to Rakta Dosha, and there is a big debate on that Rakta is dosh or not. Finally he concluded that Rakta is not as a dosh, but when we see that there are two basic Samprapti, Koshta related and Shakha related, well, from Koshta to Shakha, if dosha are moving, then Rakta has been considered as a dosh. Where the Koshta related Samprapti are only there, Rakta has been not considered as a dosha. The main indication to use Shakha Upakrama, that is Yantra, Shastra and Anushta Shastra Adi. That is important. That should be used in Shakha related Arsha only, that is in Bahya Marga only and not into the Abhyantar Marga. That's why while mentioning Chikitsa Siddhanta in Charaka Samhita, Charaka has not mentioned about any operative procedures, but Sushruta mentions. Because Sushruta Samhita has been described on the Shakha base and Charaka Samhita has been described on the Koshta Samprapti level. Not only in Arsha, but also considering into the Vrana, Charaka mentions 36 of the Upakrama and Sushruta mentions 60 Upakrama. That is also due to differentiation of manifestation and explanations. Now coming to Nidan Panchak, as we all see there are 5 parts mainly. In Arsha Nidana, what will we see? Aharas, Vihara and Karmas. These are the Nidana enlisted in the Charak Samhita and in the Sushruta Samhita. I have bifurcated all in 3 bays, Ahara, Vihara and Karma. In Ahara we can see there is a list of the materials that has shown. In Vihara also that is a list of the and Karma also. Why this have been focused? Because
particular highlighted nidana, what I have mentioned, we see it on routine practice, the red highlighted words, and the another is the green highlighted that we see very less. Like as an example, स्त्रीणां च आमगर्भभ्रंशात् गर्भ उत्पीडनात् विषम प्रसूतिभिश्च, that we see very less in our practices of Shalya Tantra. Okay, in while considering to the gynecological practices, they may have been looking towards that, but in Shalya Tantra practice, we see it very less. What we see? We see the clinical manifestation of Parikartika postpartum in our clinical practice of Shalya Tantra. But due to Garbha Utpidanat, that we see very less. Basti Karma Vibramada, if the hospitals are connected with multi-speciality hospitals or the hospital unit is already having a Panchakarma unit or a Kaya Chikitsa unit, there we see that due to Chikitsa Vyapad, we can see this type of the Arsha. If the nozzle is very sharp or the particular person, whoever have been given a virechana, then due to excessive vega or due to unbearable conditions of the virechan, the patient develops parikartika or protrusion of bile masses that we can see. The blue highlighted word, that is samudirana vega vinigraha. This is compulsory, have been present in all each and every cases we look into our daily routine practices. Whether the patients disclose it or they do not disclose it, but 13 type of urges that have been mentioned in the Charaka Samhita, we should evaluate about that. That's why it is highlighted with different colors. Arsha Prakara, as we see, this is the clinical classical reference of Jatottar and Sahaja Arsha as mentioned in Charaka Samhita, whether Vatpita Kapha, Shonit Sannipata and Sahaja are the taken from the references of Sushruta Samhita. Kriyakal and Samprapti, they both goes parallelly. Like as an example, when the Nidan consumption is there, if the patient does the Nidan Sevan, that at that time the Sanchaya starts. Then after Sanchaya, Prakopa and Prasara, this will be depend on the aggravation and causative factors, that is severity of the Nidana. Also in the Sannikrushta or Viprakrusht type of the Nidana, that will also depend. Then in the Sana Sanshraya, the manifestation of Purva Roop will occur. Then in Vyakti, it will give us Rupa, that is clinical classical manifestation and the features that we can see. And in the Bhed Avastha, the Samprapti totally will be clear to us. Now coming to Arsha Samanya Samprapti, that has been mentioned in Sushruta Samhita, that is Tatra Anatmavata Yathokta Prakopane. What can we take as a Anatmavata? That has been mentioned in Dalhana Tika, that Anatmavana, it is a Ajitendriyanam. What is Ajitendriya? Ajitendriya is Mana, Vachana, Karma. By all these three phases, person does the Nidana Sevana. Okay, that is the one who has not controlled Indriya, that is Ekadasha Indriya, Jnanendriya, Karmendriya and Ubhendriya Mana. Okay, after and after only this Anatmavata, only and only Nidan can be 7. Nidan 7 can be done, because it has been already mentioned in the Samprapti of all the diseases where it is commonly mentioned, and Pragna Parada has been mentioned as a common factor of originating all the kind of clinical manifestations. That's why Tatra Anatmavata is the main factor. The second one is Yathokta Prakopane. What we can take is Yathokta Prakopane, that is Sopa Samuthana. That is in the Ama Bakveshaniya Adhyay, as it is mentioned that Sopa Samuthana Nam Granthi Vidrati Alaji Prabrutayah. There it is mentioned as very commonly that each and every disorder of me will form a Sofa Samuthan, and then after any other type of growth related disorders, because there are 3 different classical pathologies they have showed: Granthi, Vidrati, Alji. The swellings with nodular growth, the swellings with suppurations, and the other kind of swellings that cannot be explained or that which cannot be controlled or cured. That is Shofa Samuthana. Viruddha Adhyasana, Stri Prasanga, Utkatuk Asana. These all are up to Utpadak and Vardak level Nidana. That once the Shofa Samuthan has been occurred, then after
this all nidana, that is viruddha ashan. In that 18 types of all the viruddha we can consider. Adhyashana, that is all type of the ill habits of the food. Stri prasanga, utkatukasana, that do not need any extra explanation. And important, that is vega vidhana and prushtayana. Now coming to the prushtayana, what we see that there are two types. One of the vehicles. One is yana and one is the vahana. What were the considered as vahana? Most of the time, and in the classics also, it has been mentioned in different deva that they all were having one vahana, but that vahana were from the animal origin. And what we are seeing today in the our contemporary scenario, that we are running through the electronic models, that is all as a yana. So there is a difference between yana and vahana. So do not intermix the concepts. Then after एकशो दोषः एकशो द्विशः समस्तः शोणित सहिताः. These all are highlighted in different colors because they all represents with different manifestations and clinical pictures that we will see. Pradhana dhamni anuprapatya adhoghatva. Which pradhana dhamni? From Nabhi. It has been mentioned in Sharirasthana. There are 24 type of the dhamani, from which 10 are adhoga, 10 are urdhvaga, and 4 are tiryaga. So among 10 adhoga, it consumes pradhana dhamni of downward direction, that is adhogatva. And then after that dhamani which supplies the gudam. What is gudam agamya? That is uttar or adhar guda. While considering to the pathogenesis of the arsha, we should consider adhara guda, and guda and pakvashaya are mentioned as a srotas mood of purishvaha srotasa. That we should focus. Then manda agni. What is manda agni? One or more agni involvement for manda agni. It has been mentioned that when the concept of manda agni written by Vartabhata, that rogaha sarve api mande agno, that time was about 4th to 5th century. And along with that, it was also considered that it was a time of Sri Tulsidasa. So he mentioned in Ramcharitmanas that the meaning of manda, and that meaning is not diminished, but meaning is ill-fired. That's why all the type of different agni, whether it is Vishamagni, whether it is a Tikshanagni, whether it is a Mandagni, all are considered as ill-fired. And the word is Mande Agnav in Vagbhata, and the word Agnav, that is for the plural form. That's why it is told as one or more agni involvement. We can see this type of concept in lifestyle disorders, many lifestyle disorders that we can see today, that more than one agni are involved. And when there is a more than one agni involvement is there among the all 13 agnis, the diseases can spread easily from coast to shakha, because they also consider the Dhatu Agni also and Mahabhuta Agni also. That's why. Now coming to the Samprapti by the way of Charaka Samhita, that says Panchatma Maruta Pitta Kapha Udavali Trayama Sarva Eva Prakupyanti Gudajanam Samudbhave. तस्माद अर्शांसी दुखानी बहुव्याधि कराणी च स्वेद उप सर्व देह उपतापिनी प्रायः उत्कृष्टतमानि च. Panchatma Marut, that means all 5 pranadi ansha of vayu. Now we see that we misunderstand the concept of anulomana, because we consider that anulomana, that is only and only downward direction of vata, but it is not that. All the vayu ansha, that is prana, apana, udana, samana, vyana, all are having their own directions of movement. First, as example, we considered apana as a downward direction. Then what will be about udana? What about prana? In all the description of shlokas, they have mentioned that pranavatra murdagaha vyana sarva dehacharaha. So that can be understood very easily, that prana, that has territory of the murdha, and vyana, that has territory of the whole body. Apana has downward direction, and as same udana has the upper direction, that is from the upside direction. If udana is pratiloma, then udana will comes to downward, and if apana is pratiloma, then apana will go to upside. Okay. So Panchatma Marutah, that means all the 5 type of ansha of the Maruta that should be considered, along with Pitta and Kapha, that shows involvement of all 3 doshas in a Gudavalitrayam. Gudavalitrayam that we have already mentioned and seen in the Charaka Samhita, that Pravahani, Visarjani and Samvarni, all 3.
सर्व एव प्रकोपयन्ति गुदजानां समुद्भवे. So it has been mentioned that total entire chain of the samprapti that they get established into the Guda Marma. Then tasmat darshanti dukhani bahuvyadhikarani. Single pathology that can lead to multiple further pathogenesis. Dukhani, dukha has been mentioned for the roga that is for the dhatu vibhanjan prakriya. That's why dukhani, and then bahuvyadhikarani cha. Sarva deha upatapini, that means can involve all 13 agni and their adhishthanani also. Prayah kruchatamani cha. If they have been involved, then it is kruchatamah. Prakupito vayu apana tam malam upachita adhogam asadya gudavallishu badhate tatastam arshansi pradurbhavanti. This is another manifestation has also been given in the Charaka Samhita only. So I have compiled both the things and tried maximum to explain. Now coming to the Jatotar Arsha Kriya Kala Vichara. There are 6 stages of the Kriya Kala that has been given into the Sushruta Samhita 21st chapter, Sutra Sthana, and their interpretation I have mentioned. So while considering Sanchaya, it does Vatadi Dosha Sanchaya, especially in Koshtha. Then the dosha sanjay in Mahasrotas are due to Jatharagni Vikriti and develop improper Vatapitta cough due to Amashay and Pakvashay Nirupeksha Sthiti. Now please focus on this. Why I have taken Mahasrotasa? Because Mahasrotasa is considered as a Koshtha and also as a Mahanimna, which is already a Srotas mood of Pranavaha Srotasa. So whenever there will be manifestation of Arsha, there will be involvement of Purishvaha Srotas itself, because Gud has been mentioned as a Mula of Purishvaha Srotasa, but also we can see that Purishvaha Srotasa or Gud is a part of Pranavaha Srotasa, because Pranavaha Srotas also comprises from Murdha to Gud. That's why whenever there is a samprapti of Arsha in a Guda particular phenomenon, then there will be involvement of Pranavaha Srotas by default. Okay, so we should consider Mahasrotasa also. And also in Mahasrotasa, Amashay and Pakvashay, both the Ashayas are there. So we should not forget about. Importantly, whenever there is a samprapti of Koshtha related sampraptis, there are given mainly 2 originated factors, that is 2 or adhishthanas are there. They are Amashaya and Pakvashaya. In clinical forms also, in the clinical forms of university, whenever we are going to write about adhisthana, we are writing Amashay or Pakvashay. Then whenever it is व्यक्ति स्थान बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन नीज व्याधि नीज रोग जितने भी है उसके लिए उत्पत्ति स्थान केवल आमाशय ही रहेगा और या तो पक्वाशय रहेगा, उसके सिवा और कोई नहीं रहेगा नीज व्याधि के लिए। आगंतुक के लिए कोई भी अधिष्ठान रह सकता है। दोनों की निरपेक्ष स्थिति, इसका अर्थ होता है कि अग्नि की सापेक्ष स्थिति में नहीं है। जैसे अग्नि अन्न का पाचन करता है वैसे उसको रिसीव करना, एब्जॉर्प्शन करवाना, वो सारी प्रक्रियाएं आमाशय और पक्वाशय नहीं करेंगे, या तो डिमिनिश्ड लेवल में करेंगे, इसका ये अर्थ है। सेकेंड स्टेज दैट इज प्रकोप, एंड प्रकोप कोपस्तु उन्मार्गगामिता ये कहा गया है। सो इसको इंटरप्रेट किया गया है कि इम्प्रॉपर वातपित्त कफ जो उत्पन्न हुआ है ऑलरेडी जठराग्नि की विकृति से, वो वातपित्त कफ को कोष्ठ के अंदर एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, जैसे कि जठराग्नि का काम है दोषों की उत्पत्ति करना, धातु अग्नि का काम है धातुओं के अंदर धातु पोषण न्याय को प्रवृत्त करवाना, और महाभूताग्नि का काम है मलों का पाचन करना। वैसे ही जठराग्नि की विकृति से जब वातपित्त और कफ प्रॉपरली उत्पन्न नहीं होते हैं, जैसे सम मात्रा में चाहिए, सम मात्रा गुण काल और दिशा वाले चाहिए, वो नहीं उत्पन्न होते हैं, तब वो जैसे विकृत स्थिति में उत्पन्न हुए हैं वैसे ही कोष्ठ में संचय होना शुरू करते हैं। जैसे ही संचय की एक लिमिट से बढ़ते हैं, कोप मात्रा में आते हैं, उसको संचय पूर्वक का प्रकोप भी कहा जाता है, और वो भी कोष्ठ की स्थिति में ही होता है। उसके बाद की स्थिति है प्रसर की स्थिति के, जिसके अंदर अरोचक, अंगसादक, छर्दी वो सारे लक्षण दिखने लगते हैं। अभी यहाँ पे अन्नवाह स्रोतस भी प्राणवाह स्रोतस के भाग रूप होने की वजह से उसका मैनिफेस्टेशन हमें क्लिनिकली देखने को मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट ये ही क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ आते हैं, जिसमें कोरेक्टल एग्जामिनेशन करने पर कहीं पे भी अर्श नहीं होता है,
वैसी कंडीशन में हम उसको सिर्फ एपेटाइजर देके छोड़ देते हैं। सो वो जो कंडीशंस के साथ हम डील करते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये हो सकता है कि वो अर्श की प्रणाली के अंदर प्रसर प्रकार की अवस्था में हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रसर का जो मैनिफेस्टेशन है उसका जो है विशदीकरण करके ये समझा जा सकता है कि एक्यूमुलेटेड दोष स्प्रेड्स इन महास्रोतस एंड इरिटेट्स अन्नवह एंड प्राणवह स्रोतस कोष्ठांग एंड आशय। ये कि जो के प्रकोप के बाद की स्थिति है और मूलतः उसके अंदर प्राणवह स्रोतस की दृष्टि, अन्नवह स्रोतस की दृष्टि होती है। यहाँ तक जो है पुरुषवह स्रोतस उतना इन्वॉल्व नहीं होता है। उसके बाद आता है पुरुषवह स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट, जबकि अंदर गुदगत भगंधर अर्श प्रवृत्ति ही स्थान संशय अवस्था के अंदर ये चीज आती है। जहां पे स्थान संशय का डिस्क्रिप्शन दिया है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 21 वर्ण प्रश्न अध्याय में, वहां पे कोष्ठ और शाखा दोनों के लक्षण का विचार दिया गया है। उसमें से जो शाखा के अंदर मांसगत का विचार है उसके अंदर गुद गता भगंधर अर्श प्रवृत्ति ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेम कला, दैट इज 1 to 6 आद्य मांसुधरा द्वितीय रक्त धारिणी, जैसे जो आपको ऐसे रेफरेंस जो याद है उसी के क्रम से रेतोधरा के अलावा की जितनी भी 6 कलाएं हैं वो सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाके बहिर्मुख स्रोतस के द्वार पर, जबकि वो अर्श जो कि गुद के अर्श हो, योनि के अर्श हो, त्वक के अर्श हो या चर्म की हो, वो एस्टैब्लिश होते हैं। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल वहां पे गुदगता भगंधर अर्श प्रवृत्ति ऐसा लिखा गया है। व्यक्ति स्थान के अंदर व्याधे दर्शनम होता है, दैट मीन्स मैनिफेस्टेशन क्लिनिकली नेकेड आई विजन से हम देख सकते हैं, जिसके अंदर त्वग मांस और मेद का इन्वॉल्वमेंट अवश्य स्वभावी रूप से होता है। भेद के अंदर अवदीर्णा नाम व्रण भाव आपन्ना नाम, ये भी क्लासिकली लिखा गया सुश्रुत संहिता का ही कोटेशन है, जिसका इंटरप्रिटेशन ऐसे किया गया है कि भेद अवस्था तक यदि चिकित्सा ना की जाए तो वो बर्स्ट ओपन होके, इसका अर्थ कि वो अपनी कला को भेद करके धारण वाली प्रक्रिया करने के बाद रक्त का जो दोष कलेक्ट हुआ है, रक्त के अंदर जो वातादि दोष कलेक्ट हुए हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू करता है। उसके बाद फिर से रिकवर होता है बॉडी की ही अपनी फिनोमिना से, और फिर से जो है वो इसी ही प्रकार की विशेष साइकिल के अंदर बनता है और अर्श की जो है वो प्रादुर्भाव होता है। यहाँ हमें समझना है मुख्य रूप से कि गुद और अर्श ये दोनों हाईलाइटेड है। गुद से क्या लिया गया है? गुद से अधर गुद लिया गया है, जो कि एक भाग है संपूर्ण गुद का, उत्तर गुद और अधर गुद। उसमें से अधर गुद जो है जिसके अंदर जो है पूरा संप्राप्ति एस्टैब्लिश होता है, एम्बेडेड होता है, जिसकी वजह से जो है गुदगत अर्श का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, और वही गुद जो है वो पुरुषवह स्रोतस का मूल भी बताया गया है। पक्वाशय के साथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों के अंदर उसका विचार दिया गया है। अब हम देखेंगे निदानार्थकत्व। सुश्रुत संहिता के अंदर गयदास का जो मत है उस प्रकार से कि जैसे कि सुश्रुत संहिता अनुदान स्थान जो है वो प्रथम जो अध्याय है वो वात व्याधि का दिया है, और उसके बाद तुरंत जो है वो अर्श की संप्राप्ति वर्णन वगैरह दिया है, अर्श निदान दिया है। तो उसका क्या मैनिफेस्टेशन है, ऐसा क्यों? तो वात व्याधि निदान अनंतर अर्शो निदान आरंभ क्यों? वात वीण मूत्र रोधिनम इति पूर्व प्रकांतत्वात्। इम्पोर्टेंट इज दैट वात व्याधि निदान जब बताया गया है तब उसके अंदर वात व्याधि के निगमन के अंदर ये बताया गया है कि वात वेग को अवरोध करना, विण वेग को और मूत्र वेग को अवरोध करना, और उसके मैनिफेस्टेशन जो है उसका एक्सटेंशन के स्वरूप में जो है अर्श निदान की व्याख्या की गई है। और इस वजह से जो है वो निदानार्थकत्व वात व्याधि के अंदर ही अर्शों का होना ये भी एक सिम्टम देखा गया है, और वात व्याधि के ऊपर निदान उसको बना के उसके बाद अर्शों की उत्पत्ति होना ये भी एक संभव स्वरूप कारण बताया गया है। अर्शसांच वात आदि निरोधत्वेन सामान्यतः शस्त्र क्षार अग्निकर्म त्रय साध्यत्वेन। अब ये जो बताया गया है वो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन इसलिए है क्योंकि सुश्रुत संहिता के निदान स्थान में दी गई मूल संप्राप्तियां जो भी 16 है वो सारी जो है वो शस्त्र क्षार और अग्निकर्म साध्य के स्वरूप में बताई गई है, क्योंकि वही शाखा के उपक्रम बताए हैं तो वहीं पे ही शाखा की संप्राप्तियां भी बताई गई है। इसलिए निदान स्थान में मूल रूप से जो भी दिए गए हैं वो सारी संप्राप्तियां
शस्त्र, क्षार और अग्नि, ये 3 से साध्य होने वाली बताई गई है। और शल्य तंत्र के अंदर व्याधि प्राधान्य भी अर्श का दिया गया है। आप देखेंगे कि जैसे कि अभी कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा होते हैं जो कि फैटल डिसऑर्डर है, लेकिन जब सुश्रुत संहिता लिखा गया था तब आप ये देखेंगे कि अष्टमहागत के अंदर कहीं पे भी अर्बुद का वर्णन नहीं है, पर अर्श और भगंदर दोनों का अवश्य संभावी रूप से वर्णन मिलता है, जो कि 25% ऑफ द वेटेज है। वो दोनों व्याधि मिलके पूरे 8 व्याधि के अंदर 25% वेटेज लेते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि शल्य तंत्र की ये व्याधि जो है वो प्रधान स्वरूप से उस समय में भी देखने को मिलती होगी। निदानार्थकत्व तरक संहिता में जैसे दिया है, अर्षेभ्यो जाठर दुखम गुल्मश्च अप्युपजायते। अब हम जाएंगे आगे की तरफ, जिसमें पूर्व रूप देखना है। विष्टम्भो अन्नस्य दौर्बलम कुक्षे आटोपयवच कार्श्य उद्गार बाहुल्यम शक्ति साध अल्प विटकता ग्रहणी दोष पांडु अर्ति शंका उदरस्य च। विष्टम्भ से हम क्या कंसिडर करते हैं? विष्टम्भ से हम जो है ऑलवेज मलबद्धता को कंसिडर करते हैं, बट हमें ये फोकस करना चाहिए कि वो मलबद्धता जो है वो किस वजह से है, अजीर्ण की वजह से है या उदावत की वजह से है या रात्रि जागरण की वजह से है। जैसा जैसा निदान होगा वैसा वैसा ट्रीटमेंट होगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि सिर्फ हरितकी देना या एरनपुष्ट हरितकी देना, उससे हम मलबद्धता को क्लियर नहीं कर सकते हैं, उसका निदान और उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक रूक्षण की वजह से मलबद्धता होगी तब तक एरंड स्नेह या एरंड पृष्ठ हरितकी काम करेगा। जब जब विष्टभता जीर्ण की वजह से होगा तब काम नहीं करेगा। ठीक है। दौर्बल्य जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस इससे कंसिडर करते हैं। कुक्षय आटोप के अंदर ब्लॉटिंग एंड फ्लैचुलेंस, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अर्श की संप्राप्ति नहीं है लेकिन उसके पहले की अवस्थाएं होती ही है। ऐसे हमें बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे जो कि हमें अपने आसपास भी देखने को मिल सकते हैं। कार्श्य जो है वेट लॉस इन लेटेंट फेजेस देखने को मिलता है, क्योंकि जब अवधीर्णन का प्रोसीजर आ जाता है तब उसके बाद भी कार्श्य होता है। और दूसरा कार्श्य जो है वो पूर्व रूप में मिलता है। पूर्व रूप में क्यों मिलता है? क्योंकि मंदाग्नि की वजह से जब आहार जीर्णन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से नहीं होती है तब रस की उत्तम मात्रा नहीं बनती है और उसकी वजह से कार्श्य के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कि पेशेंट्स में कार्श्य देखने को मिलता है, क्योंकि सुश्रुत ने ही कहा है सूत्र स्थान 15 में रस निमित्तम एवं स्थौल्य कार्श्यम, तो जिसका रस प्रॉपर नहीं बनेगा उसके अंदर कार्श्यता अवश्य स्वाभाविक रूप से हमें देखने को मिलेगी। उद्गार बाहुल्यम शक्ति साध अल्प विटकता। नाउ अल्प विटकता जो है उसको हमें कैसे समझना है? दैट इज इनकम्प्लीट बाउल इवैक्यूएशन। जब भी हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं तब हम मूल रूप से या तो पेशेंट हमको बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं या तो ये बोलते हैं कि ठीक से उनको मोशन क्लियर नहीं होता है, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कंसिडर कर लेते हैं। बट जब रोम का डेफिनेशन जो है कॉन्स्टिपेशन का, उसके अंदर भी 4 मिनिमम क्राइटेरिया होने चाहिए। उसमें से एक क्राइटेरिया है वो है इनकम्प्लीट बाउल इवैक्यूएशन। इफ patient is giving you that history that he is able to defecate once in a day, उसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड नहीं है, बिकॉज हमें उसके साथ ये भी पूछना आवश्यक है कि उसको बाउल इवैक्यूएशन कंप्लीट होता है या नहीं होता है। इफ इट इज इनकम्प्लीट बाउल इवैक्यूएशन देन ऑल्सो इट इज अपूर्व रूप ऑफ अर्श, दैट इज अल्प विटकता। ग्रहणी दोष माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जैसे आपको पता है। पांडु अरति शंका उदरस्य च, जैसे कि ब्लॉटिंग होता है और फ्लैचुलेंस होता है तब भी हैवीनेस ऑफ एब्डोमेन तो लगता ही है, उसके साथ साथ आटोप भी होना स्वाभाविक होता है। इस वजह से पेशेंट को पांडुरोग, अरति और उदर की आशंका होती है, या तो डॉक्टर्स को भी ऐसा लगता है। अब सामान्य अर्श के जो लक्षण है वो जैसे लिस्ट में दिए गए हैं उस प्रकार से है। हमें देखना है कि दोषिक लक्षण कैसे होते हैं। सहज अर्श के रूप भी जैसे संहिता में बताए हैं वही वाले हैं, वही लिए गए हैं, लेकिन सहज अर्श जो है वो हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में इतने देखने को नहीं मिलते हैं, या तो हम उसको इतना मिमिक्स नहीं करते हैं या उसमें इतना कंफ्यूजन नहीं आता है। वातिक अर्श का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके अंदर दिया है शुष्क, म्लान, कठिन, परुष, रुक्ष, श्याव, ये है उसका वर्ण। जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिए गए हैं वो क्लिनिकल पिक्चर्स है और राइट साइड में जो भी दिए गए हैं वो उसके सिस्टम्स के अंदर या तो जनरल सिम्टम्स है। सार्वदेहिक जो लक्षण है वो राइट साइड में दिए हैं, लेफ्ट साइड में जो है वो रूप है। ऐसे अर्श हमको देखने को मिलते हैं प्रैक्टिस में। त्रिक्षाग्नानि, वक्राणि, स्फुटित मुखानि, विषम विस्तृतानि। वैसे ही सुश्रुत में जैसे मेंशन किया है परिशुष्क अरुण विवर्णानि,
विषम मध्यानि कदम्ब पुष्प तुंडीकेरी नाड़ी मुकुल सूची मुख आकृति निश्च। अब हम देखेंगे कि ये अर्श दिखते कैसे हैं। पहले तो शूलम सहतम उपवेश्यते वाला जो हमें कहा गया है लक्षण के अंदर, उसका अर्थ क्या होता है वो बहुत बार पेशेंट मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं और हम उसको जो है इग्नोर करते हैं, या तो उसका क्लासिकली कहाँ पे भी मेंशन नहीं है ऐसा समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। सशूलम संहतम उपवेश्यते, उपवेश्यते का अर्थ होता है वित्त सर्ग कार्यते, दैट मीन्स पेनफुल डेफिकेशन that has been clearly mentioned in the वातिक अर्श। अगर पेशेंट आता है पेनफुल डेफिकेशन का, कीप इन द माइंड वो वातिक अर्श हो सकता है। तो ये जो सारे बताए गए हैं आकृति में वो सारे वातिक अर्श है। नामकरण देखेंगे एक एक का। परिशुष्क अरुण विवर्ण के वर्ण के जो अर्श है वो इस प्रकार के होते हैं। कदम्ब पुष्पवत आचितानी, ऐसे अर्श होते हैं। ये जो अर्श है वो कार्पास, वन कार्पासिका पुष्प की तरह या तो तुंडी केरी के समान जो अर्श बताए गए हैं वो इस प्रकार के होते हैं। तीक्ष्ण अग्र वाले अर्श जो है वो वातिक अर्श होते हैं, जिसको कॉमनली हम सेंटिनल टैग या तो फिशरी नैनो के बाद होने वाले सेंटिनल टैग विद फिशरी नैनो, क्रॉनिक फिशरी नैनो विद सेंटिनल टैग ऐसे भी बताते हैं। वो सारे जो है वातिक अर्श के लक्षण है और उसका यहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है तीक्ष्ण अग्रणी के साथ। उसी को ऑपरेट करने के बाद ये प्रकार की स्थिति बनती है। अभी आते हैं पैतिक अर्श के अंदर। जैसे कि पहले मैंने बताया वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो सारे उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसा रूप दिखता है वो बताए गए हैं और राइट साइड पे उसके शारीरिक या तो सार्वदेहिक लक्षण बताए गए हैं। वैसे ही उसी को हम देखेंगे कि क्लिनिकली वो कैसे दिखते हैं। ये जो फर्स्ट फिगर है वो है शुकतुंड जीवा, जैसे कि एक पैरट बीक और उसका जो बीक के अंदर का जो पिंकिश पोर्शन होता है उस प्रकार का दिखता है, जब वो है शुकतुंड जीवा। मोस्टली जो एनाल पेपिलरी ग्रोथ होते हैं और जो ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं और जिसका म्यूकोसल लैसरेशन भी हो जाता है वो इस प्रकार के दिखते हैं। कलाय सतीन सदृशाणी, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एंगोर्जमेंट जो हो रहा है इसके अंदर, जो पाइल मास के अंदर एंगोर्जमेंट है वो दिखते हैं कलाय सतीन सदृशाणी। वैसे ही ये जो है बाह्याश की कंडीशन के अंदर भी कलाय सतीन सदृशाणी हमें देखने को मिलता है। ये जो ब्लैकिश पार्ट है वो जांबवत अर्श है और ये जो है वो खरजूर सदृशाणी अर्शाणी है। ये फिगर किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये फिगर इंपॉर्टेंटली है जलोक वक्र सदृशाणी। जब हम थेरापेटिक फ्लीच को पकड़ के देखते हैं तब उसके अंदर इस प्रकार की जो आकृति है वो देखने को मिलती है। जब लीच ब्लड सक करती है, जब वो रुधिर अभिसरण के अंदर से जो है रक्त दोष के जो आचूषण करती है, तब उसके यहाँ पे रहे हुए दांत जो है वो प्रोमिनेंट होते हैं और इस प्रकार की आकृति बनती है, जो कि 3, 7 एंड 11 o'clock की प्रोमिनेंट पाइल्स के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं, इसलिए उसको जलोक वक्र सदृशाणी कहा गया है। अब आते हैं श्लेष्मिक अर्श की ओर। श्लेष्मिक अर्श के अंदर भी जैसे क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें से क्लिनिकल पिक्चर और जो सार्वदेहिक लक्षण है उसको अलग किया गया है और वैसे ही चरक संहिता के अंदर भी दिया गया है। देखेंगे वो कैसे होते हैं। ये है गोस्तन सदृशाणी अर्श। ये जो है वो स्थिर अर्श, जैसे कि हाइपरट्रोफाइड पेपिला होता है जिसमें से कोई भी प्रकार का एक्सीडेशंस नहीं होता है, स्राव नहीं होता है, चिकनाई नहीं होती है, वो सारे जो है वो स्थिर अर्श हो जाते हैं, बाहर की तरफ इसी प्रकार से रहते हैं, एक्सटेंडेड ग्रोथ की कंडीशन में रहते हैं। ये ही वात कपज अर्श के अंदर भी सुश्रुत ने डिस्क्राइब किए हैं और जिसके अंदर बताया है कि वो अग्नि साध्यानी है। ये जो बताया गया है वही तुंडी केरी के बीज के जैसे या तो करीर के बीज के जैसे भी ये जो है देखा गया है, करीर आस्ती बताया गया है उसको। ये जो है पनस आस्ती है। जैक फ्रूट जो होता है, जैक फ्रूट के जो सीड्स होते हैं उसके जैसे शेप के जो अर्श होते हैं उसका मैनिफेस्टेशन संहिताकार ने दिया है, वो इस प्रकार से दिखते हैं। महामूलानी सिराणी, इस प्रकार के अर्श में क्या होता है कि उसका जो बेस होता है, इंटरनो एक्सटर्नल बेस होता है, उसकी वजह से बेस एलोंगेटेड रहता है, पूरा एनाल वर्ड्स को इंक्लूड करता है उसके साथ साथ, और जो है वो स्टेबल कंडीशन में रहते हैं, उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा बाहर ही रहते हैं। इंटरनो एक्सटर्नल होते हैं, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आते हुए, दैट मीन्स कि वो डिसेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें फाइब्रोटिक चेंजेस आते हैं। फाइब्रोटिक चेंजेस आने की वजह से वो फिर से रिड्यूस भी नहीं होते हैं
और दूसरा ये भी होता है कि उसके अंदर वो स्थिर स्वरूप से रहते हैं और महामूलानी होते हैं। महामूलानी इसलिए होते हैं क्योंकि वो लार्ज बेस को कवर करते हैं। उसमें पेडिकल फॉर्मेट करके ऑपरेट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको एक ही सिटिंग में सारे अर्श का आप ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर डेवलप होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ये जो अर्श है वो उपचितानी और लक्षणानी, दैट मीन्स कि बल्ज आउट हुए हैं, बल्ज आउट है, उसके साथ साथ वो ग्लिसरी स्किन भी उसका दिख रहा है पेशेंट का, और लक्षणा भी है। तो ये जहां तक है वो तीनों दोष के अर्श के वर्णन है। अभी देखेंगे सन्निपातिक अर्श क्या होते हैं। उसके अंदर अर्शांसि खलु जायन्ते न सन्निपाति त्रेवि दोषे दोषे विशेषास्तु विशेषः कल्प्यते अर्शसाम। इसका अर्थ ये होता है कि दोषों की विशेषता के अनुसार जैसे हमने निदान सेवन किए हैं पेशेंट ने, उस प्रकार से, जैसे कि पित्त की वृद्धि क्रोध से भी होती है, पित्त की वृद्धि आतप सेवन से भी होती है, लेकिन दोनों के अंदर अंशांश कल्पना का भेद होता है। उसी प्रकार से दोषे दोषे विशेषास्तु, वैसे प्रकार से अलग अलग प्रकार के अर्श होते हैं। जैसे वैसे ही लक्षण जो है वो पैतिक वाले आएंगे, कफ का जो निदान होगा उसकी वजह से कफ के वो लक्षण आएंगे, और वात का जो निदान सेवन किया होगा उसकी वजह से वात के वो प्रोमिनेंट सिम्टम वाले अर्श मैनिफेस्टेशन में आएंगे। मतलब कि सन्निपातिक अर्श सारे एक समान पिक्चर्स के नहीं होते, या तो उसको एक ही बार में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे कि ये अर्श का जो पिक्चर दिया गया है उसके अंदर आपको स्वेलिंग भी देखने को मिलेगा, पूरा एनाल वर्ज उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, मल्टीपल नंबर ऑफ द पाइल्स है, एक्सुडेशन के अंदर पस फॉर्मेशन कहीं पे ड्यू टू इन्फेक्शन हुआ है, प्लस ब्लीडिंग भी ऑलरेडी पेशेंट को हो चुका है, फाइब्रोटिक चेंजेस भी है। मतलब कि वातपित्त कफ तीनों के लक्षण आप एक जगह पे एक ही प्रकार के पेशेंट के अंदर देखेंगे। तो वैसी कंडीशन जो होती है वो सन्निपातिक प्रकार के अर्श की होती है। नाउ कमिंग टू रक्तज अर्श। रक्तज के अंदर क्लियरली बताया गया है नग्रोध प्ररोह विद्रुम काकणंतिका फल सदृशाणी। इससे हमें देखने को ये समझने को मिलता है कि वो प्रोमिनेंट रेड कलर के होंगे, उसके साथ पित्त लक्षण आने भी होंगे। जैसे कि ये अर्श जो है वो रक्तज अर्श है। अब समझना ये है कि पित्तज अर्श और रक्तज अर्श में डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो पित्तज अर्श जो होते हैं उसकी ब्लीडिंग जो है वो पित्त दोष की शांति से शांत हो जाती है, लेकिन रक्तज अर्श जो होते हैं उसकी ब्लीडिंग जो है वो पित्त शमक औषधियों से शांत नहीं होती है, इसलिए इसको कॉन्सेंट्रेट करना ज्यादा जरूरी है। ऊपर से इसके अंदर ये होता है कि इसकी जो स्वेलिंग है वो रक्त की वजह से, यानी कि रक्तज अर्श जो होते हैं उसमें शाखा की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, तो उसकी जो स्वेलिंग है वो ज्यादा रहती है। ज्यादा इतनी रहती है कि वो त्वक को भी इन्वॉल्व करती है, शाखा के अनुसार त्वक को भी इतना इन्वॉल्व करके उसकी स्वेलिंग का जो एक्चुअल टेरिटरी होता है 3, 7, 11 उसको मिटा देते हैं, और उसके अलावा भी स्वेलिंग आगे बढ़ती है। जैसे कि ये सिर्फ इंटरनल पाइल्स है, ये जो है इंटरनल एक्सटर्नल का मैनिफेस्टेशन है, ये सिर्फ इंटरनल का है। उसके अंदर भी रक्तज वर्ण उपरांत काकणंती का फल सदृश ऐसे हमें पिक्चर देखने को मिलता है। प्रोग्नोसिस क्या है कि शेषस्वाद आयुषत्वाद आयुषतानी चतुष्पाद समन्वित। इंपॉर्टेंट ये है कैसे चतुष्पाद समन्वित, क्योंकि ये चिकित्सा स्थान का वर्णन है, और चिकित्सा स्थान के कोई भी व्याधि की चिकित्सा केवल और केवल औषध से और केवल विषक से नहीं हो सकती। उसके लिए विषक द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, ये चारों की उसके षोडश कला भेषज वाली स्थिति, यानी कि अगर रोगी भी है तो उसका ज्ञापकत्व भी आवश्यक है, उसका ही आढ़्य होना भी आवश्यक है, उसका ही विषकवश्य होना भी आवश्यक है। उस प्रकार की 16 के 16 गुण मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं मिलते हैं तो उसकी चिकित्सा होने की संभावनाएं बहुत कम रह जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि याप्यन्ते दीप्त काय अग्नि, मतलब कि दीप्त काय अग्नि, जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक वो वैसे ही कंडीशन के अंदर रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये है, सुश्रुत का रेफरेंस है जो नीचे है वो त्रिदोषाणी अल्पलिंगानी याप्यन्ति तु विनिर्देशेत द्वंद्वजानि द्वितीयायां वलो यानी आश्रितानि च कृच्छसाध्यानि तानि आहु परिसंवत्सराणि च। 1 साल से ज्यादा अगर हिस्ट्री है पेशेंट की सेम कंडीशन में अर्श रहने की, अगर वो डेंटेड लाइन से अबव की कंडीशन के अंदर है और 1 से ज्यादा है, तब उस पेशेंट को जो है वो चिकित्सा होना उसकी जो है वो कृच्छ साध्य रहते हैं।
उसके साथ साथ सन्निपात समुत्थानानि सहजानि तु वर्जियेत्। पहली कंडीशन, सहज अर्श हमारे पास बहुत कम आते हैं। दूसरी बात, जब भी हमें पेशेंट आते हैं अर्श के, तब उसकी फैमिली हिस्ट्री लेना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप से पेशेंट को पाइल्स का कंप्लेन रहता है। उसके साथ साथ सन्निपात समुत्थानानि मतलब कि जब भी वो अर्श का प्रेजेंटेशन के साथ ऐसे केसेस आते हैं, तब उसमें आप किसी भी एक दोष को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके साथ साथ तीनों दोषों के लक्षण को साथ में लेके आते हैं। वैसे केसेस के अंदर ऑपरेट नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट दूसरा ये है, ततो ज्ञानेन संगम्य ज्योति मृदनाति देहिनाम। ज्योति मृदनाति देहिनाम से जो है शास्त्रकारों ने ये अर्थ किया है कि वो अर्श की उल्बणता इतनी होती है कि वो मृत्यु पर्यंत ऐसे रहते हैं, या तो फिर वो अर्श की वजह से ही वो मृत्यु के तक पेशेंट जो है वो लीड होता है। इट मे डेवलप फेटल कंडीशन। इस प्रकार से एथिकल प्रैक्टिस का कंसिडरेशन भी हमें शास्त्र में मिलता है। इंटर रिलेशनशिप ऑफ द अर्श, अर्श के अंदर ही बताया गया है, अर्शांशी च अतिसारश्च ग्रहणी दोषश्च एव च। ये तीनों का इंटर रिलेशनशिप दिया है, बट उन तीनों के अंदर बेस कंसेप्ट जो है वो है, कॉमन फैक्टर जो है वो मंदाग्नि दिया गया है। एशाम अग्नि बले हीने वृद्धि वृद्धे परीक्षा, दैट मीन्स अग्निबल जितना कम रहेगा वैसे वैसे व्याधि की वृद्धि होगी, अग्निबल जितना जितना पावरफुल रहेगा वैसे वैसे व्याधि का जो है वो परीक्षय मतलब कि क्षय होता जाएगा। सो इस अग्नि से क्या कंसिडर करना है, इस अग्नि से नॉट ओनली डाइजेस्टिव पावर बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी हमें कंसिडर करना है। हेमरॉइड्स के जो डिस्क्रिप्शन दिया है मॉडर्न में, वहां पे हमें जहां तक हम प्राइमरी बुक्स जो पढ़ते हैं उसके अंदर यही बताया गया है कि इट इज अ वेरिकोसिटी ऑफ द वेन्स, बट इट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। वेरिकोसिटी ऑफ द वेन्स से सिर्फ पाइल्स नहीं होते, वहां पे भी रेक्टल आर्टरीज जो होती है उसके इंसर्शंस भी रहते हैं, प्लेक्सस भी बनते हैं। वैसे ही इंटरनल हेमरॉइडल प्लेक्सस और एक्सटर्नल हेमरॉइडल प्लेक्सस बनते हैं, और उसके अंदर ही अर्श का जो है प्रावधान होता है। स्लाइडिंग डाउनवर्ड ऑफ द एनल कुशन इज द ओनली एंड मेन इंपॉर्टेंट कॉज, ऐसा जो है वो ऑलरेडी रिसर्च के अंदर प्रूव हो चुका है। Hemorrhoids result from disruption of the anchoring and flattening action of the musculus submucosae, जो कि हम अगर एनाल एनाटमी पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि मस्कुलस सबम्यूकोसाई जो है उसके ऊपर ही जो है इंटरनल म्यूकोसा पूरा रहता है और उसी के ऊपर कुशंस रहते हैं। तो जितना ही प्रेशर सबम्यूकोसाई पर आएगा उतना ही जो है एनाल कुशन का स्लाइडिंग डाउन होगा। ट्रेट्स मसल जो है वो उसी से बनता है। तो ट्रेट मसल्स जो है उसके इंटरमिंगल इलास्टिक फाइबर्स जो है उससे बनता है, उसका इसके अंदर अर्श के मैनिफेस्टेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रेट्स मसल का जितना कंप्रेशन ज्यादा होगा उतना एनाल कुशंस का जो है डिसेंट होगा। रिपीटेड स्ट्रेचिंग ऑफ द सबम्यूकोसल ट्रेट्स मसल कॉजेस डिसरप्शन एंड रिजल्ट्स इन प्रोलेप्स। प्रोलेप्स किसका होता है, वो मसल्स का और कुशंस का होता है। मसल का कंप्रेशन होने की वजह से उसके अंदर रहे हुए एनल कुशंस जो है उसका डिसेंट होता है और तब जाके पाइल्स का जो है वो मैनिफेस्टेशन डेवलप होता है। डायग्नोसिस हेमरॉइड्स का जो है वो कैसे करना है, जैसे हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री के पेशेंट्स आते हैं और उसके साथ साथ इंटरनल एक्सटर्नल के आते हैं, उसका ये एक कंपाइल्ड फॉर्मेट प्रिपेयर किया गया है कि पेशेंट्स के जो प्रोट्रूशन ऑफ मास, पेन, बर्निंग पेन, सिस्टमिक सिम्टम्स ये सब रहते हैं, पर वो सब फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डिग्री या तो इंटरनल एक्सटर्नल में कैसे रहते हैं। फर्स्ट डिग्री में सिरिंजिंग मैनर का ब्लीडिंग रहता है जो कि सेकंड डिग्री में उससे कंपैरेटिवली कम होता है, थर्ड डिग्री में बहुत कम होता है और इंटरनल एक्सटर्नल के अंदर वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। स्वेलिंग जो है वो फर्स्ट डिग्री में कोई भी प्रकार का पाइल मास डेवलप नहीं होता है, जबकि जैसे हमें पता है कि हेमरॉइड ये दो शब्दों की वजह से बना हुआ है जिसका मतलब होता है फ्लावरिंग पैटर्न के अंदर ब्लीडिंग होना। तो जब तक फर्स्ट डिग्री का पाइलमास होता है, फर्स्ट डिग्री में जब केस होता है तब वो हेमरॉइड्स का होता है, तब तक कोई भी प्रकार का पाइलमास फॉर्मेट नहीं होता है। इस वजह से हमें क्लिनिकली जब हम प्रोक्टोस्कोपी भी करते हैं तो अंदर कोई पाइलमास विजिबल देखने को नहीं मिलता है, वहां स्वेलिंग नहीं आती है। सेकेंड डिग्री के अंदर पाइलमास बनना शुरू हो, लेट सेकेंड डिग्री ऐसे भी हम शब्द सुनते हैं जो कि क्लिनिकली रबर बैंड लाइगेशन एटसेट्रा के अंदर हमें
यूजफुल मिलते हैं। तो लेट सेकेंड डिग्री के अंदर जो है वो पाइल मास बनता है, सेकेंड डिग्री के अर्ली फेज में कभी भी पाइल मास बनता नहीं है। थर्ड डिग्री के अंदर जो है वो ऑलवेज स्वेलिंग होता है, जो कि एक्सटर्नली विजिबल नहीं होता है। एक्सटर्नली इट बी प्रेजेंट ड्यू टू डिसेंट ऑफ इंटरनल हेमोरॉइडल प्लेक्सस, इंटरनली नहीं होता। एक्सटर्नल के अंदर हम एक्सटर्नली विजिबल स्वेलिंग को देखते हैं। प्रोट्रूजन ऑफ मास जो है वो फर्स्ट डिग्री के अंदर नहीं होता है। सेकेंड डिग्री के अंदर जो होता है प्रोट्रूजन ऑफ मास वो सेल्फ रिड्यूसिबल कंडीशन के अंदर रहता है। थर्ड डिग्री के अंदर जो है वो पेशेंट्स खुद ही ऐसे हिस्ट्रीज देते हैं कि दैट इज अ मैन्युअली रिड्यूसिबल। एंड इंटरनल एक्सटर्नल के अंदर जो है वो प्रोट्रूडेड विजिबल मास ऑन एग्जामिनेशन हमें देखने को मिलता है। पेन जो है वो फर्स्ट डिग्री, इसलिए वैसे पेशेंट के अंदर पेनलेस ब्लीडिंग होती है हमेशा। थर्ड डिग्री के अंदर माइल्ड टू मॉडरेट पेन और इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स मास में जो है वो एक्सेसिव पेन होता है, पेशेंट सिटिंग डिस्कम्फर्ट्स के साथ आता है। बर्निंग कंडीशन जो है, बर्निंग इटसेल्फ इज द कैरेक्टर ऑफ द पेन, इट इज नॉट अ सेपरेट सेंसेशन बट इट इज अ कैरेक्टर ऑफ द पेन, जो कि फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री में नहीं देखने को मिलता बट थर्ड डिग्री में। सिस्टमिक सिम्टम्स के अंदर जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग जब होती है तब उसके बाद पेशेंट जो है वो एनेमिक कंडीशन में होते हैं, वेट लॉस भी और लेथार्जी कंडीशन जो है वो फर्स्ट डिग्री में भी देखने को मिलता है। बहुत सारी कंडीशन में ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो ब्लीडिंग की कंप्लेन एंड वेट लॉस, बस ये दो ही हिस्ट्री लेके आते हैं। जब एग्जामिन करते हैं, जब उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तब हमें जाके ये क्लिनिकल एविडेंस भी मिलते हैं कि ड्यू टू वेट लॉस, ड्यू टू ब्लीडिंग तक जाते हैं। सेकेंड डिग्री के अंदर भी वही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जबकि थर्ड डिग्री के अंदर जनरलाइज बॉडी वीकनेस का जो पार्ट है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और फोर्थ डिग्री या तो इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स जो है उसके अंदर भी डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न ड्यू टू पेन, ये हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हेमरोइड्स की एसोसिएट पैथोजेनेसिस जो होती है वो क्लिनिकली सेकेंडरी डिग्री ऑफ सेकेंडरी पाइल मास में क्या क्या होते हैं। सेकेंडरी पाइल मास जो कि 3-7 होते हैं, उसके अलावा 5 o'clock 9 o'clock ऐसी पोजीशंस पे भी होते हैं। या तो ऐसी कोई क्लिनिकल कंडीशंस की जिसके उपद्रव स्वरूप में जो है हेमरॉइड्स हमें देखने को मिलते हैं, वो है क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, पोर्टल हाइपोटेंशन एंड अदर इंफ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर वास्कुलर एनामोलिस है, एंजियोडिस्प्लेसिया है, एटसेट्रा जो कंडीशंस है उसके अंदर भी हमें जो है पाइल्स देखने को मिलते हैं। जो पाइल्स हमें क्लिनिकल कंडीशंस में मिलते हैं उसके अंदर हमें कॉमन ट्रीटमेंट प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करना है। उसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस का ये जो मैटर है पूरा वो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे कि गॉर्डन फिलिप्स का जो बुक है कोलोरेक्टल सर्जरी का, उसके अंदर एज इट इज दिया गया है पेन का मैनिफेस्टेशन, ब्लीडिंग, इचिंग, डिस्चार्ज, लंप मास एंड होते हैं, उसको हेमरोइडल प्रॉब्लम्स एंड अदर डिजीज दोनों में कैसे कंपैरेबल होता है वो बताया गया है। मिथ्स एंड फैक्ट्स, इफ वी फोकस दैट, मिथ्स इतने रहते हैं कि ओनली वेरिकोसिटीज ऑफ द वेन है, पर ऐसा नहीं है। लाइगेट ऑल द पाइल विद 4 सूत्र, ऐसा हम जो है आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो ऐसा माइंड में रखते हैं, बट ये ऐसा नहीं रखना है। उसका रीजन भी हम बताते हैं क्यों। ऑल द पाइल्स आर ब्लीडिंग पाइल्स, ऐसा भी नहीं होता है। बात तो गए है कि उसमें ब्लीडिंग नहीं होता है। एंड प्रिस्क्राइब हरितकी इन ऑल डिसऑर्डर्स ऑफ द पाइल्स, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं पर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज ओनली वेरिकोसिटी ऑफ वेन ऐसा ही पाइल्स में होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी बताया गया डेफिनेशन में, इट इज अ डिसेंट ऑफ ओनल कुशंस, और वो डिसेंट ऑफ एनल कुशंस जो होता है उसी को हम लाइगेट करते हैं, अदरवाइज हम वेरिकोसिटीज ऑफ वेन को लाइगेट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है। ट्रीटमेंट जब करते हैं तब हमारे पास आने वाला पेशेंट जो है वो प्राइमरी पाइल्स का है या सेकेंडरी पाइल्स का है, उसको देख के फिर ही ट्रीटमेंट प्रिंसिपल डिसाइड करना है। बिकॉज सेकेंडरी पाइल मास जितने भी होते हैं जो कि क्रॉन्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस या तो दूसरे भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर के बाद होने वाला जो कंडीशन में आता है, उसको कभी भी ऑपरेट के लिए हैफाजार्डली ट्राई नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द तो उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन करते हैं कि वैसे पाइल्स को ऑपरेट नहीं करना है।
अगर वैसे पाइल में ऑपरेट करते हैं तो सुपीरियर आर्टरी रेक्टल आर्टरी का जो ब्लीडिंग है वो एक्सेसिव होता है। उसके साथ साथ पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से रहने वाला ब्लीडिंग भी जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसको आप कभी भी कॉटराइज करके कवर नहीं कर पाते हैं। बहुत कम समय रहता है और होता क्या है कि वैसी कंडीशन के अंदर अगर एक्सेस की कंडीशन में भी जा सकता है। तो ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए कभी भी ये माइंडसेट से नहीं चलना है कि सारे ही केसेस के अंदर 4 सूत्र बंधन कर देना है। उसके बाद ऑल द पाइल्स आर ब्लीडिंग, नहीं, ये भी एक मिथ है और उसका फैक्ट ये है कि सभी पाइल्स में ब्लीडिंग नहीं होता है। मुख्य रूप से वात और कफज वाले में नहीं होता है। हरिता की सब केसेस में प्रिस्क्राइब करनी है। इसका तो ये है कि सिलेक्ट अनुलोमन एज रिक्वायर्ड, जिसमें रिक्वायर्ड इसकुल है उसमें वो, उसके साथ साथ एक पूरा चार्ट दिया गया है कि किस प्रकार का हमें अनुलोमन सिलेक्ट करना है। उस प्रकार से सिलेक्ट करके हमें ट्रीटमेंट आगे करना चाहिए। थैंक यू फॉर। हेलो जोशी मैडम। Yes. Madam, your slide is not visible. Sir, I completed my talk. Yes, okay. Hello, thank you very much, madam. It was a very thoughtful and insightful lecture on the Naidanic part, covering all the aspects of Nidhan Panchar, and their practication would be very helpful to all the delegates.